So very formal. Good morning once again. In your yesterday's class, what we have done that we had discussed about one incident that happened with Dr. B.R. Ambedkar when he was hardly 9 years old. Right. So when he was 9 years old, he had to go to his father along with his cousins, his brother. So he went there. That place was there in Maharashtra, and they when they reached the station, they were waiting for someone to pick them up, but neither the father nor the servant, no one came to pick them up. And these kids, they were so well dressed, and the way they were talking, I mean, everyone was assuming that these kids, they are belonging to some higher caste. So the even the station master, when he also talked to them, he was also very you can say inspired by these kids, and he even asked them that they are belonging to which caste, because he was also having this impression that these kids are belonging to a very higher caste, right? So when he asked and when he came to know that these kids are belonging to Mahar caste, which was at that time somehow it was there as the, you can say, low caste, or these were treated as the untouchables. So when he came to know, to he himself withdrew from the scene. He even uh, told the bullock carts which were there outside the station, that these kids are belonging to Maharka. So ये न्यूज वहां तक पहुंच गई। और जब ये बच्चों ने ये डिसाइड किया कि कोई आ नहीं रहा, हमें तो हम खुद ही बुलक कार्ट ले लेते हैं और हम वहां पर हायर कर लेते हैं और हम घर पहुंच जाते हैं। जब ये स्टेशन से बाहर आए तो वहां पर आके बुलक कार्ट्स का पूछा, तो बुलक कार्ट्स वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे। वाई? बिकॉज दैट न्यूज हैड स्प्रेड that these kids are belonging to some low caste. ये बेचारे बच्चे वहीं पे वेट करते रहे, ये ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे, right? They were ready to give more money, but still no one was ready to take these kids. So अब हम इस चीज को अगर अज्यूम करें थोड़ा सा कि एक छोटी सी चीज है कि बुला कार्ट पैसे भी दे रहे हैं, बुला कार्ट करने, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सिस्टम these kids could not go to their place, they could not reach, और वहां पर बेचारे बच्चे जो थे वो इतनी देर तक बैठे रहे। तो ये जो कास्ट सिस्टम रहा है हमारी कंट्री में, अ, उसके इस ढंग से इम्पैक्ट रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, आप सारे इस समय यू आर अराउंड 11 or 12 years, राइट? सो 9 years का बच्चा है, what that child would have felt, right? What that child would have felt, उसको कैसा लगा होगा कि how he had been you can say treated there, how insulting would have been it this for him, कि the way he was being treated, और कैसे मुलाकात वालों ने भी उनको नहीं लेके गए, और जिस ढंग से ट्रीटमेंट मिला वो बच्चों के लिए कितना ज्यादा इंसल्टिंग था। के बाद लिखिया होनी सर हाँ बिना के बाद लिखिया होनी सर हाँ बिना हाँ बैठो मैं जूस लेके आती हूँ। मास्क के साथ साथ बच्ची को मस्का भी लगाते रहिए, लॉकडाउन आसानी से कट जाएगा।
ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए अंबेडकर के साथ व्हेन ही वाज वेरी यंग। तो जब वो बड़े हुए तो उनको ये चीज थी माइंड में कि इक्वालिटी जो है दैट शुड बी देयर इन द कंट्री। फाइन। सो व्हेन he was framing the constitution, like, because he's the father of the constitution। तो जब ये ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उसमें एक इन्होंने कंसेप्ट जो था वो ये चाहते थे कि ये होना चाहिए that the equality is to be there। As a leader, as a person, he had suffered such much humiliation, such much insult when he was young। So otherwise he बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं he was very very able person। Able in the sense कि he was the first one from his caste to get education। He went to England and he became a lawyer। राइट, ही बिकेम अ लॉयर। और उसके बाद ये वापस आए और इन्होंने फिर एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो था जिसे मैंने बताया आपको 1927 में इन्होंने स्टार्ट किया था। रीजन वाज बिकॉज एट दैट टाइम द पीपल वर नॉट हैविंग द राइट टू एंटर द टेम्पल्स आल्सो। द सो कॉल्ड द लो कास्ट पीपल, जिन्हें बाद में गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया, तो वो जो लोग थे उन्हें ये भी राइट नहीं था कि वो मंदिरों में जा सकते। right? They could not fetch the water from the village well। Their kids could not get the education with upper class people। राइट, एंड जो कॉमन रोड्स हैं, कॉमन मार्केट्स हैं, वहां पर नहीं जा सकते थे। अगर कोई हाई कास्ट वाले को ये लोग टच कर लेते थे तो दैट पर्सन हैड, इट वाज अ बिलीफ कि अब तुम्हें यू हैव टू टेक द बाथ बिकॉज द लो कास्ट पर्सन हैज टच्ड यू। सो ये इस टाइप की चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट जब अंबेडकर जी ने स्टार्ट किया वो इस पर्पज से था कि किस ढंग से ये जो प्रेजुडाइसेस हैं वो हर्ट कर रहे हैं लोगों की लाइफ। और Ambedkar, he was so hurt by these social structure which was there in the Hindu religion there, कि वहां पर इक्वालिटी जैसी चीज उनको लग नहीं रही थी, क्योंकि वो being he himself being belonging to the low caste, he was being treated very badly। So what he did, he adopted the Buddhism। उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया और वो बौद्ध बन गया। उन्होंने बौद्ध रिलीजन था, बुद्ध रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि जो बौद्ध रिलीजन है वो एटलीस्ट दैट इज प्रोफेसिंग द इक्वालिटी, प्रोपोगेटिंग द इक्वालिटी। उन्हें वहां लगा कि वहां पर शायद इस ढंग की जो इनइक्वालिटी है वो उस रिलीजन में प्रिवेल नहीं करती है, तो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बुद्ध रिलीजन में। राइट, सो इन इक्वालिटीज का आम लोगों के ऊपर उस समय बहुत ज्यादा असर हुआ। नाउ व्हेन द कंट्री गॉट द इंडिपेंडेंस, तो उस समय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उनके माइंड में ये चीजें थी। राइट, दे हैड दीज थिंग्स इन देयर माइंड कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट होगा तो क्वाइट पॉसिबल कि ये जो से सपोज सो कॉल्ड लो कास्ट हैं, they may go unrepresented in the parliament। Their interests may not be taken care of in the parliament। They may not get uplifted। They may not be considered in the mainstream of the society। तो इन लोगों को अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी अब थी गवर्नमेंट के ऊपर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें ये प्रोविजन रखा गया दैट द राइट ऑफ इक्वालिटी वाज गिवन टू द पीपल। राइट, अब ये राइट टू इक्वालिटी भी देने का रीजन ये था कि काफी लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था कि यस द इक्वालिटी इज टू बी देयर। सो ये सिर्फ लो कास्ट के लोग नहीं थे जिन्हें दिक्कत आ रही थी या जिनके साथ इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर हो रहा था। देयर वाज वन मोर क्लास, women। Women was also being discriminated since long। आप लोगों को इस समय हैरानी हो रही होगी कि आप लोग उन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जहां पर गर्ल्स जो हैं दे आर गेटिंग द इक्वल एजुकेशन। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गर्ल्स हैं बॉयज हैं, या घर में बेटा है बेटी। आजकल की सोसाइटी में ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं। और आप लोग जिन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं वहां तो बिल्कुल ही नहीं। आज से अराउंड यू कैन से 100 साल पहले तक
ये हालात थे कि गिविंग द एजुकेशन टू द women, इट वाज अ सोशल टैबू कि जो women है they are meant to get married, take care of the families and they cannot go out, they are not supposed to do jobs तो दूर की बात है कि उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनको पढ़ने का राइट ही नहीं है, क्या करेंगी पढ़ के, घर का ही काम करना है, ये एक व्यू होता था, राइट। सो आपको और ज्यादा हैरानी होगी ये सुनकर कि आज भी हमारे कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर अभी भी विमेन को एजुकेशन देना, पढ़ाना लिखाना जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, राइट। सो ये जो विमेन थी, फिर विमेन ऑल्सो प्रोटेस्टेड। धीरे धीरे क्या हुआ कि विमेन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया एंड दे वांटेड द राइट टू वोट, सॉरी राइट टू गेट एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन राइट की, एटलीस्ट हमें पढ़ने लिखने का हक होना चाहिए, राइट। हर किसी ने अब जो भी पर्सन एक इनइक्वालिटी फेस कर रहा था सोसाइटी में, हर किसी ने अपने लिए इक्वालिटी की डिमांड करना शुरू कर दिया, राइट। जैसे अनटचेबल से इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ कि टेम्पल्स में एंट्री के लिए इन्होंने डिमांड रखी, विमेन ने डिमांड रखी कि हमें एजुकेशन राइट्स दिए जाएं। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या थे, जो पीजेंट्स होते थे ना, फार्मर्स होते थे, दे हैड टू पे लॉट ऑफ टैक्सेस, सो उन्होंने टैक्स रिडम्पशन की डिमांड रखनी शुरू कर दी। आई मीन हर जगह जिसने भी इनइक्वालिटी फेस की हुई थी, everyone wanted to have a change, they wanted to have a right for them, right to freedom। वो चाहते थे कि जो इनइक्वालिटी फेस की है वो अब आगे नहीं चाहिए। सो ये एज आई सेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनके माइंड में ये था कि ऐसा हो सकता है कि आगे जाके इनको फिर सप्रेस किया जाए, ये ऑलरेडी सप्रेस क्लासेस हैं, इन्हें आगे ना आने दिया जाए, जो जो पावरफुल कम्युनिटीज हैं वो इनको दोबारा सप्रेस कर दें, दोबारा डोमिनेट कर दें, ये चांसेस हैं। हमारे जो लीडर्स थे ना, दे वर फार साइटेड, वो दूर का देखते थे कि हाँ ये चीजें फर्दर भी रहेंगी, उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन बना दिया। क्या प्रोविजन बनाया, दैट फ्यू सीट्स आर टू बी रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो लोअर कास्ट, जैसे जो पहले अनटचेबल्स कहलाई, इसके बाद फिर इसे गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल नाम दे दिया, दैट वाज शेड्यूल्ड कास्ट, राइट। अभी अपने आप को ये लोग अपने आप को दलित कहलाते हैं, और ऑफिशियल जो टर्म है दैट इज द शेड्यूल कास्ट, उनके लिए पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व थी। नॉट ओनली इन पार्लियामेंट, इवन इन द गवर्नमेंट जॉब सम few seats are reserved for them. In the government educational institutions also, the few seats are reserved for these people, right? Not only this, अब जैसे हम women की बात कर रहे हैं, women जो है उनको भी, उनकी भी कुछ सीट जो है वो पार्लियामेंट में रिजर्व्ड है, गवर्नमेंट में रिजर्व्ड है। ये बात अलग है कि स्टिल वेरी लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द विमेन इज देयर, विमेन का बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है हमारी पार्लियामेंट, राइट। रीजन कुछ भी हो सकते हैं कि आज भी विमेन को एज सच बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। इफ शी इज गोइंग आउट, इफ शी इज वर्किंग ऑन हर ओन, राइट, बहुत ज्यादा सपोर्ट आप कहें कि वो जो है वो नहीं मिलता। तो शायद ये भी एक रीजन है कि the women they themselves don't want to come out and participate in the politics, because politics जो है एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग प्रोफेशन है। सो ये भी रीजन है कि अपनी फैमिली नीड्स को छोड़कर जो लेडीज हैं वो बाहर नहीं आना चाहती हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, बट ये प्रोविजन है। बट इट विल बी सरप्राइजिंग टू नो कि इतना सब होने के बाद भी स्टिल इनइक्वालिटीज है। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें एक प्रोविजन क्या था, दैट अनटचेबिलिटी इज बैड, इट वाज अबॉलिश्ड, राइट। अनटचेबिलिटी बिल्कुल अबॉलिश कर देगी, और कोई भी अगर ये पाया जाएगा अनटचेबिलिटी को फॉलो करता हुआ, तो या नॉट ओनली फॉलो करता हुआ, अगर किसी की ऐसा आप कास्ट को रेफर करने वाले कुछ वर्ड्स भी बोले जाएंगे, अगर उनको वोकल भी आप कह सकते हैं कि इनको हरास किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल क्राइम। पनिशेबल क्राइम है वो कि आप किसी को इस ढंग से आई मीन आप अनटचेबिलिटी को या फॉलो करते हैं या उनको बोलते भी हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, दैट इज ऑल्सो द पनिशेबल क्राइम। तो टोटली अबॉलिश हो गया, बैन कर दिया गया उसको। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर अभी भी द untouchability is still followed,
the inequality is still there. So अब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट जो है अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक स्ट्रिक्टनेस दिखाती है टू गिव द इक्वालिटी। अब हम लोग इक्वालिटी इक्वालिटी बहुत बोलते हैं, हमें राइट टू इक्वालिटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बट क्या वो राइट लोगों को मिल रहा है? आर दे इक्वल? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अभी बहुत सारे एरियाज है जहां पर इक्वालिटी नहीं है। इवन कई बार हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो एक और स्टेप उठाया था वैसे टू प्रमोट द इक्वालिटी इन द कंट्री, वो वर्ड आता है सेक्युलर या सेक्युलरिज्म, जहां पर हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। हम चाहे तो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्लस गवर्नमेंट ने किसी भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया। अब जैसे पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया है, इस्लामिक कंट्री है, राइट। सो ऐसा हमारी कंट्री में कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो उसका ऑफिशियल रिलीजन, राइट। सो ये एक प्रोविजन जो है ये भी हमारी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है। और एज आई सेड कि गवर्नमेंट जितने भी स्टेप्स उठा रही है, जब तक लोगों में खुद में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये चीजें जो है कंटिन्यू रहेंगी। एंड दिस स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, it should keep on going, right? The equality, it is not the thing which comes automatically, right? People have to strive hard and this struggle should continue. ये जब स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा तभी हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो इक्वालिटी है वो काफी हद तक लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। जहां स्ट्रगल छोड़ देंगे लोग तो वहां पर जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, side by side, we people are also required to change our thinking, to change our mentality, and we should think step ahead in providing the equality to the people who are surrounding us, right? हमारे आसपास भी अगर हमें लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड हो पा रही, तो हम खुद उनको we should come forward, we should change our behavior, we should be a change, right? So government जो भी कर रही है, but still ये struggle जो है चलता रहना चाहिए, then only the equality will be ensured. We will at least reach that point where the people are equal. So we come to the end of this chapter now.